Good morning, dear students. How are you all? Dear students, in our last lecture in the human body, we had talked about the external body parts, the internal organs of the body, the five sense organs, and the various organ systems. We have discussed two organ systems, namely the digestive system and the respiratory system. Now, from today onwards, we are going to discuss the rest of the organs of our body. So, first of all, we'll start with the circulatory system. Do you know what is the circulatory system? Students, we are going to start with the circulatory system. And when I'm starting with the circulatory system, it is a transporting system. But what is it transporting? Let's try to understand. Which gases are transported to and from the body cells by the blood flowing in the circulatory system? Yes, it is oxygen is a gas which is needed for respiration and is transported to the body cells. Now dear students, let's try to understand what are the main functions of a circulatory system. Circulatory system is a transport system of our body. ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. ये ऑक्सीजन को फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर इट कैरीज. व्हाट आर इट्स फोर बेसिक फंक्शंस? ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट. हमारी बॉडी में ये न्यूट्रिएंट्स भी देता है और हमारी जो बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, इसको भी ये ट्रांसपोर्ट करता है. मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर. हम कहते हैं ना हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, हमारे को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया. इट इज़ ओनली ड्यू टू द सर्कुलेटरी सिस्टम हम इसको मेंटेन कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं? इट इज़ द हार्ट, इट इज़ द ब्लड वेसल्स. नाउ बच्चे, लेट्स डू इट इन डिटेल. आवर सर्कुलेटरी सिस्टम consists of heart, blood and the blood vessels. Heart pumps the blood to different parts of the body through blood vessels. आपको पता है जो हमारा हार्ट है बच्चे, ये एक सेंट्रल पार्ट है, मेन ऑर्गन है जिसको हम मशीन ऑफ द बॉडी बोलते हैं. आपको पता है अगर हार्ट स्टॉप हो जाता है तो पर्सन टेंड टू डाई, राइट? सो दैट्स वाई जो हार्ट होता है इट पम्प्स द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. And do you know how is this blood transported to different parts? It is transported with the help of blood vessels. Blood takes the oxygen, very important. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था ना, इसको हम हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन को हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेकर जाता है एंड सेंड्स द डाइजेस्टेड फूड्स ऑल्सो टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो ब्लड में ही आ जाते हैं. सो दैट्स वाई. सो ऑलवेज रिमेंबर, circulatory system is also known as a transport system. And what are the organs of your circulatory system? Heart, blood and blood vessels. Right? Now, we move ahead towards the next system. And this system is known as a nervous system. Very important system. बच्चे, जो नर्वस सिस्टम होता है ना, इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इट कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स. सी, ट्राई टू पिंच योरसेल्फ. जब आप पिंच करते हो ना, एकदम पेन होती है. पता है क्यों आपको पता लगा कि पेन हो रही है? क्योंकि एक सेकेंड में वो मैसेजेस हमारी ब्रेन तक चला गया कि समथिंग इज हर्टिंग. एंड हाउ इज दिस मैसेज सेंड टू द ब्रेन? यस, with the help of the nerves. So bache, let's see. Nervous system consists of your brain, your spinal cord and the nerves. Bache, the brain controls the body parts through these nerves. All our actions such as reading, such as hearing, singing, walking are controlled by the nervous system. Do remember. See, now we switch over to the next type of your system. And what is this? I could see all bones here. Yes, dear students,
This is a framework of the bones known as skeleton. At times when you watch a horror movie, वहाँ पे हमारे को एक skeleton ज़रूर दिखाते हैं, right? This is this skeleton. हमारी जो body है वो इतनी सारी bones की framework से बनी है. Do you know how many bones are there in our body? Yes, there are 206 bones in our body, adult body. Now, let's discuss about our skeleton system. But a skeletal system consists of bones which are present in our whole body. And what are the functions of the bones? They provide support to our body. हमारी बॉडी में एक फर्मनेस आती है ना, सपोर्ट आती है, आप अपनी लेग्स में पे खड़े हो जाते हो आराम से. वाई? इट इज़ बिकॉज बोन्स हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. दे प्रोवाइड सपोर्ट टू योर बॉडी. नाउ दे प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑल्सो. बच्चा आपको पता है हमारे जो इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, लाइक लंग्स हो गई, लाइक किडनीज हो गए, राइट, लाइक हार्ट हो गया, इन सबको कौन प्रोटेक्ट करता है? बोन्स प्रोटेक्ट करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प अस टू स्टैंड एंड वॉक. अगर आप चल सकते हो, अगर आप स्टैंड हो सकते हो, it is only with the help of a bones. Is that clear? Now let's see the functions once again. Support, protect the delicate organs, they help in the movement, and also bones. आपको पता है ना, कैल्शियम कहते हैं ना, अगर मिल्क पियोगे आपकी बोन स्ट्रॉन्ग बनेंगी. then only you could be having good calcium. So हमारी bones जो होती हैं वो mineral storage like calcium is there in our bones. Now we talk about one more system. Which system is it? Muscular system. बच्चे, do you know आपकी बॉडी की जो बोन्स होती हैं ना, उनके ऊपर बहुत सारी मसल्स होती हैं, राइट? तो ये मसल्स का क्या वर्क है? The muscles provide movement with the skeleton system. They are important in life support, used by the humans and other animals for food. Let's see to it. बच्चे, our muscular system has more than 600 muscles. So we move our body by using both the bones and the muscles. अगर हमारे को अपनी बॉडी को मूव करना है, आपको वॉक करना है, तो आपको बोन्स के साथ साथ ना मसल्स भी चाहिए होंगी, राइट? नाउ बच्चे, वी टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन सिस्टम, एंड दैट इज एन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. डू यू नो व्हाट इज एन एक्सक्रीटरी सिस्टम? एक्सक्रीट करने का मतलब अपनी बॉडी से कुछ गंदा निकाल देना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल देना. एंड बच्चे, दिस मीन्स कौन से ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम अपनी बॉडी से निकालते हैं? यस, इट इज़ द सॉल्ट्स, कुछ मिनरल्स हमारी बॉडी से, राइट? जो हमारा वेस्ट होता है, बॉडी वेस्ट, वो भी हम लोग अपनी बॉडी से निकालते हैं. सो व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ एन एक्सक्रीटरी सिस्टम? फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टू एक्सक्रीट द वेस्ट दैट आर नॉट हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी. Now let's see कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी से हमारी वेस्ट को रिमूव करते हैं. बाय दिस टाइम आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा ये पिक्चर्स को देखकर. लंग्स, देन यू हैव योर स्किन, देन यू हैव योर किडनीज, यू हैव योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये सब कुछ ना कुछ यहाँ पर रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से. बच्चे, लेट्स टॉक अबाउट योर एक्सक्रीटरी सिस्टम नाउ. Our body produces a lot of waste materials which is harmful for our body. आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं. सो इट मस्ट बी रिमूव्ड. इनको हमारे को बॉडी से रिमूव करना है. एंड यू नो हाउ आर दे रिमूव्ड? दे आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ किडनी, विद द हेल्प ऑफ लंग्स एंड विद द हेल्प ऑफ योर स्किन. लेट्स सी हाउ. और ये तीनों ऑर्गन्स मिलाकर हमारा क्या देते हैं? दे फॉर्म द एक्सक्रीटरी. यू नो स्टूडेंट्स, वी हैव 2 किडनीज. बच्चे, ये जो किडनीज होती है ना, दे क्लीन द ब्लड एंड मेक यूरिन. द यूरेटर्स कैरी द यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर.
Now this urine is stored in the urinary bladder before being passed out. Is that clear? तो बच्चे ये यूरिन क्या होता है? दिस इज ऑल्सो अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम योर बॉडी. तभी तो कहते हैं यू शुड बी ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हो ना, यू कैन डिटॉक्स योर सेल्फ. नेक्स्ट, व्हेन वी ब्रीद आउट, आप जब ब्रीद आउट करते हो तो हमारी लंग्स की हेल्प से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी में. एंड व्हाट डू यू इनटेक देन? गुड ऑक्सीजन, जिससे कि हमारी ब्लड सप्लाई भी इम्प्रूव होती है और सारी बॉडी के अंदर द सप्लाई टेक्स प्लेस. एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द स्किन इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. आप लोगों को कहते हैं ना यू शुड नॉट सिट आइडल. अब आजकल वैसे ही लॉकडाउन है तो यू शुड नॉट सिट एट वन प्लेस. आपको मूव करना चाहिए, क्योंकि जब आप मूव करोगे तो आपकी बॉडी से उतना ही स्वेट निकलेगा और उस स्वेट के थ्रू हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी से बाहर आएंगे. सो आवर स्किन रिमूव्स द स्वेट whereas lungs remove the carbon dioxide from our body, right? Now बच्चे, you could be seeing with the help of this picture that whenever we have our lungs के through हम लोग अपनी body में से carbon dioxide को भी throw it out. And when with the help of your skin, some salts and some sweat is being taken out. With the help of your kidneys, हमारा यूरिनरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है और हम लोग यूरिन को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी डू द लास्ट सिस्टम. यू नो, दिस सिस्टम helps the human beings to produce babies. Have you seen a small baby? Where it is formed and how it is there? Only with the help of reproductive system. So by this system, the life continues on earth, and the detail for this would be taken up in the next classes. So I hope all the organs are perfectly clear to you. So you have discussed in detail about the circulatory system, nervous system, muscular system, excretory system, and the reproductive system. So dear students, enjoy reading, watch the video again so that the whole of a chapter is clear to you. Thank you.